کرام کا حکم ہے اور ان کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اولیاء کاملین کا نظریہ ہے، علماء دین کا جو طریقہ ہے، چاہے چاند رہے جانے چاہے چلی جائے، کبھی بھی ہم اپنے شریعت کے معاملے میں کسی سے سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ در امتیاز ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو علماء کرام نے ایسے ہی پایا اور آئندہ بھی پائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ پائے گا آپ کو، علماء کرام کی جماعت پائے گی، اور فیصلہ جلدی سے سماعت کر لیجئے تاکہ کوئی بھی چونو چرا کی نوبت نہ آئے، اور اس کے بعد وہاں پہ بتا رہے ہیں جا رہے ہیں بھائی۔ آپ ہر طرح سے نہ معذور ہے آپ کے لیے۔ دیکھیے ہماتن گوش ہو کر ان باتوں کو سماعت کیجئے بھی، اور جو لوگ یہاں نہیں ہیں ان کو بھی آپ سنا دیجئے گا کہ فیصلہ یہ ہوا ہے۔ جمعہ میں اعلان ہو جائے گا، اور جمعہ میں بھی اعلان کروائیے، وہ ہم کر دیں گے۔ اور یہاں پر جو علماء کرام تشریف رکھتے انشاءاللہ، علماء کو اسی کام کے لیے اللہ نے چنا ہی ہے کہ حق کا چراغ ہمیشہ جلا کے رکھتے۔ انشاءاللہ علماء کرام بھی جہاں جہاں رہتے وہاں بھی لوگوں کو باخبر کریں گے اس فیصلے سے۔ آپ لوگ ہماتن گوش ہو کر سماعت کیجئے، کوئی بھی آدمی چونو چرا بیچ میں نہ کرے اور کوئی بھی بولے نہیں، سماعت کیجئے۔ وہ کاہے وہ بات سب اب کر رہے ہیں؟ آپ توڑ دیے آپ تو کہہ رہے ہیں ان کو توڑ کے ان سے مرید ہوئے۔ اب یہ بدل گئے، اب یہ بدل گیا۔ ہم آپ سے کیا پوچھنے والا آپ مسلک اعلیٰ حضرت کو چھوڑ رہے ہیں؟ شانتی سے بیٹھے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کو چھوڑ رہے ہیں؟ جو آپ کر رہے ہیں وہ مسلک اعلیٰ حضرت میں نہیں ہے۔ جو وہی نا، وہ مسئلہ کے حالات میں نہیں، آپ اس کو کیا چھوڑ رہے ہیں؟ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، انہوں نے مسئلہ کے حالات کو چھوڑ دیا۔ سنیے فیصلہ سن لیجیے۔ اتمام حجت کے لیے اتنے علماء کرام کا آ جانا ہی کافی تھا، اور جس وقت سے علماء کرام آئے ہیں اس وقت سے ان لوگوں سے بار بار مطالبہ کرتے رہے ہیں، مگر پھر بھی وہ اپنی بات پر، ضد پر اور حد دھرمی پر وہ اڑے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی لاسٹ میں جب فیصلہ سنانے کا ٹائم آیا اس وقت بھی ناظر صاحب سے یہ اس بات کی وضاحت چاہیے کہ ابھی بھی وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ علماء کرام کی موجودگی میں ان خرافات سے، بدعات سے آپ توبہ کر لیجئے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے انہوں نے پوچھا دلبر رائی صاحب نے کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ مسلک اعلیٰ حضرت کو بھی چھوڑ رہے ہیں؟ تب ناظر صاحب کی طرف سے جواب آتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے۔ مطلب صاف ہے کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہو یا نہ، اس سے بات نہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ اس لیے اتمام حجت مکمل طور سے ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، کوئی اب سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیصلہ سنیے حضرات، سرلاہی کے 40 سے زیادہ علماء کرام، مشائخ اعظام اور اساتذہ کرام، 7 مسلم بورڈ نیپال اور ادارے شریعہ سرلاہی کے جملہ اراکین و ممبران نے مدرسہ رضائے مصطفیٰ برہتوان نگر پالیکا میں محمد احمد محتشم صابری کے عکسی، تصویری، مصنوعی، غیر شرعی مزار کے خلاف میٹنگ میں شریک ہوئے اور فریقین کے بیانات سنے۔ تمام گواہان اور شواہد کی موجودگی میں مصنوعی، عکسی، تصویری،
मजार को गैर शरई पाया और साहिबे मजार यहाँ कट कीजिए, यहाँ है अभी भी। जिनकी कब्र भी मौजूद नहीं है, जिनकी कब्र भी मौजूद नहीं है, खिलाफे शरफ पाया, यानी मोहम्मद अहमद मुहतसिम साबरी की यहाँ पर उनका मजार भी नहीं है, वो अन्नाव के रहने वाले, वो सारी बातें आएंगी। उनकी कब्र भी यहाँ मौजूद नहीं है और उलमाए कराम ने खिलाफे शरीयत पाया, बल्कि बाद उलमाए कराम ने अहमद मुहतसिम को कादियानी मसलक का ताबेदार बताया। जो उन्नाव यूपी का रहने वाला था, वहीं पर अहमद मुहतसिम साबरी की कब्र है, जिसके बारे में चंद उलमाए कराम ने कहा कि ये सुन्नी भी नहीं है, कादियानी है, अरे कादियानी है, वैसे इस्लाम से बाहर है वो। उसके मुरीद नाम निहाद मौलवी मोहम्मद नासिर हुसैन सुंदरपुरी सुम्मा बरहतवी को तमाम शुरका, अजिल्ला, उलमा और मशाइख ने गुमराह और गुमराह करने वाला पाया। यही शख्स मसनूई अक्सी तस्वीरी मजार का बानी मुबानी है, बल्कि तमाम उलमा मशाइख ने उसे तमाम बिदआत और खुराफात का मरजा और मस्कन बताया। मतलब सब की जड़ मौलवी नासिर हुसैन है। तमाम उलमाए किराम ने, मशाइख निज़ाम ने और सैकड़ों हाज़िरीन की मौजूदगी में इन मज़कूरा बिदआतों मुनकरात पर ये मौलवी नासिर साहब डटा रहा और तौबा इस्तग़फ़ार बार बार इनको करने को कहा जाता रहा, मगर उलमाए किराम के बार बार इस्तिग़फ़ार पर भी और इनको बार बार तौबा करने की दावत दी जाती रही, मगर ये बार बार धर्मी ज़िद और अना पर ये डटे रहे, तौबा से इनकार करते रहे। लिहाजा उलमा और मशाइख और मुफ्तियाने कराम इस आदमी को गुमराह और गुमराह करार दिया और इसे तमाम दीनी, समाजी, सियासी, मिल्ली, मजहबी यानी मस्जिद, मदरसा, ईदगाह, कब्रिस्तान, शादी, ब्याह, खाना पीना, सलाम कलाम, उठना बैठना, लेन देन, तमाम तर दीनी चाहे दुनियावी जो भी मामलात हो, इन सारे मामलात में इनका बाइकाट का ऐलान किया जाता है। आप लोग सहमत है ना भाई साहब? बाइकाट किया जाता है और ये फैसला बाइकाट किया गया है। और गुमराहगर शख्स के जो भी मुआविन मददगार यानी इनके सपोर्ट में या इनके साथ उठना बैठना किसी भी हिसाब से इनकी मदद कर रहे हैं, तो उन पर भी वही हुक्म लगेगा जो इससे पहले आपने सुना है। उनके साथ भी शादी ब्याह नहीं करेंगे जो इनका साथ देगा, उनके साथ भी वही हुक्म होगा। यानी इनके साथ कब्रिस्तान में इनको नहीं जाने देना, तो उनको भी नहीं जाने देंगे जो इनका साथ देंगे। और ये बातें सिर्फ बरहतवा के लिए नहीं है, सुन लीजिए, ये बातें सिर्फ बरहतवा के लिए नहीं है, बल्कि पूरे सरलाही में खुसूसियत के साथ और पूरे नेपाल में उमूमियत के साथ ये बात मुकम्मल तौर से बाइकाट वाली इसको तशहीर की जा रही है और करनी भी चाहिए। जिनकी जहां तक पहुंच है उस हिसाब से इनके ताल्लुक से लोगों को बताए कि बरहतवा में इतने उलमाए कराम आए थे और इनके बाइकाट का ऐलान किया है। जहां जहां इनकी रिश्तेदारी है वहां भी खबर कर दी जाए, और अगर उसके बाद भी इनसे वो साठ घाट रखते हैं तो वहां के गांव वाले इनसे साठ घाट रखने वाले का वहां बाइकाट करेंगे। वहां बाइकाट किया जाएगा, चाहे वो मौलवी से रिश्तेदारी हो चाहे मुफ्ती साहब से। अब मर जाए तो न इनके यहाँ जाना है न इनको अपने यहाँ आने देना, न कब्रिस्तान में दफन करने देना है। और कोई भी कोई भी मौलाना, एक बात ध्यान में रख लीजिए,
उलमाए कराम खास करके सरलाही वाले, आज तक हमने आपने अपनी जरूरत को समझते हुए जब चाहे कौम का दर्द लेकर हमारा बढ़ जाते हैं। मुफ्ती शमसुल हक साहब से उनको जलन है, मिराज असद से थोड़ी है, हम जाएंगे। तो ये उलमा को चाहिए कि इस कमी को दूर करें। इस मामले में कोई भी आदमी आपके पास फोन करे कि हम बरहतवा के सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, नेता हैं, या हमारी पहुंच बहुत है, आप आइए हम आपको पैसा में तौल देंगे, तो इन उलमाए कराम की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ऐसे ऐसे पैसों की बोरी को जूतों की ठोकरों से उड़ाए, लेकिन इनकी हिफाजत करें। जिंदाबाद जिंदाबाद। फातिहा मिलाद सब इनका बंद, कोई भी आलिम नहीं आएगा, ये अपना कर्म तो करना है। हाँ चलिए, है आगे नहीं? क्या बोलना है? और एक बात और क्या बोलना है? दुआ कर रहा है। माइक दीजिए ना हजरत, माइक दीजिए ना, माइक। माइक में कहो। अपने दीन के साथ, अपने नबी के साथ है, उनको हम समझाए, सब कुछ करें। मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद अंसारी, मेरा अबू का नाम मोहम्मद जुबैर अंसारी। वो अभी तो दुकान में काम हुए, इसीलिए उनको ठीक है, इतना ही रखे ना, मान लीजिए बेटा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह का शुक्र है, सुनिए, ये अल्लाह का शुक्र है, अच्छा किया। ये अल्लाह का शुक्र है कि आली जनाब बाबू मोहम्मद शुएब खुर्शीद, मोहम्मद खुर्शीद, इनके वालिद का नाम मोहम्मद जुबैर अंसारी, इसने इस बाबू ने अपने वालिद साहब को समझाया कि हमको दीन से अलग नहीं रहना है। सुभान अल्लाह। और अब तक जो खुराफात इनसे या इनके वालिद साहब से या इनके घर के लोगों से हो गए, उन सारी चीजों से तौबा कर रहे हैं बाबू। तहे दिल और से इनके तौबा कर। वालिद साहब भी तौबा करने के लिए तैयार हैं। इनके वालिद साहब दुकान में हैं, अगर आ सकते हैं तो उनको बुला लीजिए, दूसरे दिन हम लोग कमा लेंगे। हमको दे दीजिएगा, हम खरीद के ले जाएंगे अपने घर, और उसका पैसा हमसे लीजिएगा। ठीक है, हम बुलवा लेते हैं। बुला के लिया, ये बड़ी खुशी की बात है उलमाए कराम की मौजूदगी में। आपके बाबा फिर तौबा करेंगे और कलमे तैयबा नए सिरे से पढ़ेंगे, उलमा गवाह हो जाएंगे, और कसम खुदा की जब आलिम दीन गवाही देगा ना, तो मैदान महशर में शहीदों के खून के कतरात के बराबर उलमाए कराम को सामने रखा जाएगा। आलिमों का है तो आलिमों की गवाही जैसे ही मिलेगी। मौला वर्तमान में ऐसा हुआ था, आज जनाब मोहम्मद जुबैर साहब और उनके बेटे मोहम्मद खुर्शीद ने अरे मुजरिम में अपने पूरे करतूतों से तौबा किया है, मौला भी माफ करेगा और सीधा जन्नत का मेहमान बना देगा। और जो हजरात तौबा करना चाहते हैं और दीन और उलमा और समाज के साथ रहना चाहते हैं, वो हजरात अभी भी उलमा की मौजूदगी है, लोग बैठे हैं, आकर अपना नाम बता सकते हैं और तौबा कर सकते हैं। जो लोग आज के बाद कल परसों भी अगर अपना इरादा बदल के तौबा करना चाहें, अभी जो हजरात आ सकते हैं, देखिए अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाजा बंद नहीं किया। बेशक बेशक बेशक। इंसान है भाई साहब, मौलाना है तो क्या मौलाना से गलती नहीं हो सकती है, लेकिन मौलाना से गलती होती है, मौलाना अकड़ता नहीं है, सिर पर नहीं रहता, जा रहा हूँ मैं, सिर पर नहीं रहता है। मौलाना चूंकि जानता है कि कोई एक आदमी या दो आदमी या मेरा समाज हमारा मुखालिफ हो जाएगा, कुछ ना बिगड़ेगा, लेकिन अगर अल्लाह नाराज हो जाएगा ना, तो न मैं दुनिया में सही से रह पाऊंगा, न कब्र में चैन से रह पाऊंगा, न हश्र में रह पाऊंगा। आप क्या समझते हैं जन्नत इतना आसान है? जन्नत में हर चीज की सुविधा है, आराम है, और उसके मुकाबले में अल्लाह ने जहन्नम भी बनाया है, जहन्नम भी बनाया भाई साहब। मैदान महशर में हजरत एक रिवायत पर नजर पड़ी है, सुनिए, मैं वहां भी जाऊंगा, जब आपने इस लायक समझा बुला ही दिया है तो हर गोशे पर मैं बात कर लूंगा इंशाल्लाह। तो 4-10 मिनट दीजिए आप, जब तक वो अपने बाबू को बुलाने गए, अल्लाह उनको इसी बाबू बना के रखे। सुनिए,
मैदान महशर में अल्लाह हुक्म देगा जहन्नम को लाओ, जहन्नम को लाओ। मैं जब पढ़ा ना तो मेरी आंखें फटी रह गई। आप सोच नहीं सकते भाई साहब, आप सोच नहीं सकते हैं। 4 अरब और 90 करोड़, 4 अरब और 90 करोड़ फरिश्ते जहन्नम को खींच कर मैदान महशर में लाएंगे। अल्लाह कितना बड़ा वसीओ अरीज उसका जहन है, कैसी वो जगह है जिसे जहन्नम कहते हैं। इतनी बड़ी जगह है उसमें, और आग, बिच्छू, सांप, अरे सबसे कम दर्जे का आजाद जो होगा ना, सबसे कम मदरसा के मोहर दो ऊपर मार दे तो आग का जूता पहनाया जाए, सरातु रखे सरातु, आग का जूता। तो हम कहना ये चाहते हैं मेरे भाई बिरादरान के साथ साथ हमारी माँ बहनें भी, अगर उनको अब तक न समझ में आया कि हम अब तक जो किए थे वो गलत था कि सही था, तो अब तो समझ में आ जाना चाहिए। इतने उलमाए कराम आ गए हैं। माँ बहनों, आपसे भी गुजारिश है, आप भी अगर अब तक वो गलत काम में साथ देते रहे तो आप भी वहीं से तौबा कीजिए, और आज के बाद आप भी मौलवी नाजिर का साथ नहीं देंगी। उस पर फातिहा के नाम पर, अगरबत्ती के नाम पर, मोमबत्ती के नाम पर, चादर के नाम पर, या बउआ को खोजने के नाम पर वहां नहीं जाएंगी। नहीं तो आपका मामला भी उन्हीं की तरह होगा। मालूम हो गया कि फला घर की माँ, फला घर की बहन, फला घर की बहू मौलवी नाजिर के साथ वहां फातिहा में और चादर चढ़ाने में, अगरबत्ती जलाने में गई है, मालूम हो गया तो उनका भी वही हुक्म होगा जो मौलवी नाजिर का ऊपर लगा है। यानी उसके यहाँ भी खाना पीना बंद, उनके यहाँ भी सलाम कलाम बंद, उनके बाल बच्चों से शादी करना बंद, उनके जनाजा में न जाना वाला मामला होगा, शादी ब्याह में नहीं जाएंगे। कोई मुसीबत पड़ जाएगी तो बढ़तवा के लोग आपका साथ नहीं देंगे, और कोई खुशी होगी तो आप गम के माहौल में आ जाइएगा क्योंकि कोई शरीक नहीं रहेगा। इसलिए माँ बहनों, इतने उलमाए करम बड़े बड़े आलिम हैं, बड़े बड़े मुफ्ती है इस स्टेज पर, कसम खुदा की इतने उलमा को बुलाने के लिए 6 महीना लगेगा ना, तब भी नहीं बुला सकते हैं आप। मगर सिर्फ 1 से 2 दिन में ये उलमाए कराम तशरीफ ले आए। क्यों? क्योंकि हमारे बरहतवा के सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमानों के ईमान पर डाका डालने के लिए कादियानी बशक्ले साबरी बरहतवा में आ गया था और कुछ लोगों को अपनी जाल में फंसा चुका है। ऐसा न हो कि बरहतवा जो मसलके आला हजरत वाला है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बरहतवा में रहने वाले गौसे आजम के मानने वाले हैं, जितने लोग हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, आला हजरत के मानने वाले हैं। ऐसा न हो कि लॉलीपॉप देकर, हाँ लॉलीपॉप में बहुत कुछ है, लॉलीपॉप देकर, फिरनी और खीर देकर, ऐसा न हो कि इसके मसलक से इसको गिरा दिया जाए, इसको मसलक के अहले सुन्नत और मसलक के आला हजरत से हटा दिया जाए, और इस तरह उसको ढीठ और जिद्दी बना दिया जाए कि बड़े बड़े आलिम भी समझाए तो फिर वो समझने को तैयार न हो और ये कहता है जो हम कर रहे वही ठीक है। इतने उलमा गलत हो गए और एक साहब जिद कर रहे हम जो कर रहे वही ठीक है। मेरे भाई, हुक्म ये है कि जहाँ जमात कसरत हो उसके साथ हो जाओ, वही जमात हक पर होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतने लोग और इतने उलमा एक तरफ और एक 2 आदमी एक तरफ, वो सोच रहा हम ही हक पर है, वो हक पर नहीं है, वो जिद पर है, वो गुमराही पर है, वो ढीठ बना हुआ है। अल्लाह से दुआ हम करेंगे कि अल्लाह उसको भी 2-4-10 दिन में तौफीक दे कि वो भी अपने गलत करतूत से तौबा करे और सच्ची तौबा करे, ताकि अहले सुन्नत वल जमात का हर फर्द उसको सीने से लगाने लगे। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। उसको आने दीजिए, सुनिए, आने दीजिए, उसको आने दीजिए, आने दीजिए। एक बात सुन लीजिए, मैदाने करबला में हम बहुत सच्ची और अच्छी बात बता रहे हैं चाचा। अच्छा सुन लीजिए, मैदाने महशर में
ना बनाएगा भाई, ये लोग बनाने ही नहीं देते तो बनाएगा कहाँ से? जब पूरा सरलाही में रिश्तेदारी बंद है तो यहाँ मदर बना लेगा? अब बनाने दीजिएगा? नहीं। बोलो ना भाई, बनाने दीजिएगा? हाँ, ना बनाने दीजिएगा। वजह देखिए यार, बहुत अच्छा। कुछ लोग ऐसे भी इसमें होंगे कि अभी तो हम आपके साथ हैं और बाद में कंबल ओढ़ के घी पीने वाले लोग भी होंगे। सही बात है। कंबल ओढ़ के घी पीने वाले लोग होंगे। तो ऐसे लोगों को मौलाना से छुपाया जा सकता है, मौलाना के पैदा करने वाले खुदा से नहीं छुपाया जा सकता है। अल्लाह ताला की मार जब पड़ती है ना भाई साहब, तो करोड़पति को खाकपति होते देखा है हमने।